Hello everyone, welcome to Pharma Minds YouTube channel. So today we are going to discuss 25 question series on the topic reproductive and urinary system. Coming to question number 1. In females, which hormone is responsible for the development and release of mature eggs from the ovaries? Option A is estrogen, option B is progesterone, option C is luteinizing hormone, and option D is follicle stimulating hormone. So correct answer will be option C, that is luteinizing hormone. This hormone triggers ovulation, the release of mature eggs from the ovaries. तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ओव्यूलेशन इंड्यूस करवाने में. Coming to question number 2. What is the primary function of prostate gland in males? Option A is to produce testosterone, option B is to produce seminal fluid, option C is to produce sperm, and option D is to produce estrogen. So correct answer will be option B. That is the prostate gland produce seminal fluid which nourishes and transports sperm. तो जो prostate gland है वो basically involve होता है in the production of seminal fluid. Moving on to question number 3. In females, which hormone is primarily responsible for the development of secondary sexual characteristics? Option A is testosterone, option B is estrogen, option C is progesterone, and option D is follicle stimulating hormone. So your correct answer will be option B, that is जो estrogen है वो primarily responsible होता है for the development of secondary sexual characteristics in females. Option B will be your correct answer. Moving on to question number 4. Which material is secreted into the filtrate in the kidney tubule? Option A is water, option B is albumin, option C is sodium ion, and option D is urea. So correct answer will be option D, that is urea secretes into the filtrate in the kidney tubules. I hope it's clear. Now coming on to question number 5. What molecule catalyzes the formation of angiotensin 1? Option A is carbonic anhydrase, option B is renin, option C is erythropoietin, and option D is calcitriol. तो जो करेक्ट आंसर है वो होगा रेनिन. जो ये रेनिन है ये रिलीज होता है फ्रॉम द जेजी सेल्स ऑफ द किडनी और ये कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन 1. तो एंजियोटेंसिन 1 की फॉर्मेशन को रेनिन कैटेलाइज करता है. तो जो ऑप्शन बी है दैट इज रेनिन विल बी द करेक्ट आंसर. Moving on to question number 6. Which one of the following is not produced by the kidneys? Option A renin, option B aldosterone, option C erythropoietin, and option D calcitriol. तो जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज एल्डोस्टेरॉन, क्योंकि जो एल्डोस्टेरॉन है वो एड्रीनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है ना कि किडनी से. रेस्ट ऑल अदर्स रेनिन, एरिथ्रोपोइटिन एंड कैल्सिट्रियोल दीज ऑल आर प्रोड्यूस्ड बाय किडनी. सिर्फ एक एल्डोस्टेरॉन ही है जो किडनी से नहीं हमें एड्रीनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है. Coming to question number 7. How does the descending limb of the loop of Henle differ from the ascending limb? जो descending limb होती है loop of the Henle की वो कैसे ascending limb से different होती है? Option A, the descending limb is impermeable to water but permeable to sodium chloride. Option B is the descending limb is permeable to water but impermeable to sodium chloride. Option C is the ascending limb is permeable to water but impermeable to sodium chloride. And option D is the ascending limb is permeable to both water and to sodium chloride. तो जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी. जो डिसेंडिंग लिम्ब है
वो वाटर के लिए तो परमिएबल होती है, बट इट इज इम्पर्मिएबल टू सोडियम क्लोराइड। तो जो ऑप्शन बी है, दैट इज द डिसेंडिंग लिम इज परमिएबल टू वाटर बट परमिएबल टू सोडियम क्लोराइड, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, विच हार्मोन causes increased sodium reabsorption in the kidney? Option A is angiotensin 1, option B is aldosterone, option C is antidiuretic hormone, and option D is vasopressin. तो जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज एल्डोस्टेरॉन। जो एल्डोस्टेरॉन है वो स्टिमुलेट कर देता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम फ्रॉम द फिल्ट्रेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एम्स टू प्रिवेंट वेसोकंस्ट्रिक्शन? इसमें से कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग वेसोकंस्ट्रिक्शन को प्रिवेंट करता है? ऑप्शन ए इज बीटा ब्लॉकर्स, ऑप्शन बी इज डायूरेटिक्स, ऑप्शन सी इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एंड ऑप्शन डी इज एज इनहिबिटर्स। तो जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन थी सी, दैट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। जब स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है, और हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम नेसेसरी होता है। अगर कैल्शियम नहीं प्रेजेंट होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। तो अगर हम कैल्शियम की एंट्री ही साइटोप्लाज्म में बंद कर दें तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी और फिर वेसोकंस्ट्रिक्शन भी नहीं होगी। तो कैल्शियम की एंट्री को बंद करने के लिए हम क्या देंगे? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से जो कैल्शियम है वो एंटर नहीं हो पाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर, कैल्शियम डेफिशिएंट हो जाएगा, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, और अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो हमारी वेसोकंस्ट्रिक्शन भी नहीं होगी। So we can prevent vasoconstriction with the help of calcium channel blocker. तो जो ऑप्शन सी है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। Now coming to question number 10, the filtrate that is formed in the kidney contain all of the following except one. Which one? Option A is metabolic waste, option B is plasma proteins, option C is electrolytes, and option D is nutrients. जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज प्लाज्मा प्रोटीन्स। जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो फिल्ट्रेट में प्रेजेंट नहीं होते, बिकॉज जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो उनका साइज बहुत ज्यादा लार्ज होता है, जिसकी वजह से वो फिल्ट्रेशन स्लिट्स ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी से पास नहीं हो पाते। दैट्स वाई वो फिल्ट्रेट में प्रेजेंट नहीं होते। रेस्ट ऑल मेटाबॉलिक वेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सब फिल्ट्रेट में प्रेजेंट होते हैं, पर जो प्लाज्मा प्रोटीन है, due to their large size, it is not formed in the filtrate. Question number 11. Which of the following cells in the testes produce testosterone? Option A is Sertoli cells, option B is spermatogenesis, option C is Leydig cells, and option D is granulosa cells. सो जो करेक्ट आंसर है वो होगा लाइडिक सेल्स। जो ये लाइडिक सेल्स होते हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में बिटवीन प्रेजेंट होते हैं, और ये प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरॉन इन रिस्पॉन्स टू ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेशन। तो जो टेस्टोस्टेरॉन है वो लेडिक सेल से प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच स्ट्रक्चर डज स्पर्मेटोजेनेसिस अक्कर? ऑप्शन ए इज वास डिफरेंस, ऑप्शन बी इज एपिडाइमिस, ऑप्शन सी इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एंड ऑप्शन डी इज प्रोस्टेट ग्लैंड। तो जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इट अकर्स विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो कहाँ पे होती है? विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Question number 13. The middle layer of the uterine wall responsible for contractions during labor is called? मिडल लेयर यूट्रिन वॉल की
जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज एंडोमेट्रियम, ऑप्शन बी इज मायोमेट्रियम, ऑप्शन सी इज पेरीमेट्रियम एंड ऑप्शन डी इज बेसल लेयर। तो जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज मायोमेट्रियम। Myometrium is the muscular middle layer of the uterine wall and it contracts during labor to help deliver the baby. तो जो मायोमेट्रियम है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर कॉन्ट्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 14, इन मेल्स द सर्टोली सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो सर्टोली सेल्स है उनका क्या फंक्शन होता है? ऑप्शन ए इज टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरॉन, ऑप्शन बी इज नरिशमेंट ऑफ द डेवलपिंग स्पर्म सेल्स, ऑप्शन सी इज प्रोडक्शन ऑफ सेमिनल फ्लूइड एंड ऑप्शन डी इज रेगुलेशन ऑफ टेस्टिकुलर टेम्परेचर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज सर्टोली सेल्स सपोर्ट एंड नरिश स्पर्म सेल्स ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो जो सर्टोली सेल्स हैं वो क्या करते हैं? नरिशमेंट ऑफ द डेवलपिंग स्पर्म सेल्स, ये इनका फंक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर डज फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम टिपिकली अकर? A is uterus, B is fallopian tube, C is ovary and D is cervix। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, जो फर्टिलाइजेशन है इट अकर्स इन द एम्पुला ऑफ द fallopian ट्यूब विच कनेक्ट्स ओवरी टू द यूट्रस। तो जो हमारी फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पे होती है? fallopian ट्यूब में। क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ fetal development do the primary sex organs begin to differentiate into either male or female structures? तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ फीटल डेवलपमेंट जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स में। ऑप्शन ए इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ऑप्शन बी इज सेकेंड ट्राइमेस्टर, ऑप्शन सी इज थर्ड ट्राइमेस्टर एंड ऑप्शन डी इज पोस्ट नेटल पीरियड। तो जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज सेक्सुअल डिफरेंशिएशन बिगिंस ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ द फीटल डेवलपमेंट। जो सेक्सुअल डिफरेंशिएशन है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर के ड्यूरिंग शुरू हो जाती है। तो जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ड्यूरिंग द मेल सेक्सुअल रिस्पॉन्स which structure is responsible for the secretion of alkaline fluid to neutralize the acidity of female reproductive tract? इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट? ऑप्शन ए इज प्रोस्टेट ग्लैंड, ऑप्शन बी सेमिनल वेसिकल्स, ऑप्शन सी इज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एंड ऑप्शन डी इज टेस्टिस। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो सिक्रीट करता है एक एल्कलाइन फ्लूइड जो न्यूट्रलाइज कर देती है एसिडिक इन्वायरमेंट को, जो कि एसिडिक इन्वायरमेंट प्रेजेंट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो जब वो न्यूट्रलाइज कर देती है उस एसिडिक इन्वायरमेंट को, तो जो स्पर्म की सर्वाइवल है और जो उसकी मोटिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो सिक्रीट करता है एल्कलाइन फ्लूइड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। I hope it's clear. Moving on to question number 18. By what name is the condition where nitrogenous waste accumulate in the blood known? Option A is anuria, option B is oliguria, option C is polyuria and option D is uremia. इसमें से कौन सी कंडीशन में नाइट्रोजनस वेस्ट accumulate हो जाता है ब्लड में? तो करेक्ट आंसर है यूरेनिया, दैट इज ऑप्शन डी। यूरेनिया में एबनॉर्मली हाई लेवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट accumulate हो जाते हैं ब्लड में। बाकी अब जो एनोयूरिया है, पॉलीयूरिया है या ओलिगोयूरिया है, एनोयूरिया में किडनीज का फेलियर हो जाता है टू प्रोड्यूस यूरिन, पॉलीयूरिया में एक्सेसिव यूरिनेशन हो जाती है, ओलिगोयूरिया में लो यूरिन आउटपुट हो जाता है।
तो इन तीनों में से किसी में भी वेस्ट प्रोडक्ट की अकोमोलेशन नहीं होती है ब्लड के अंदर, बट यूरीमिया में वो होती है। तो जो यूरीमिया है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Question number 19. It is the hormone made by the kidneys needed for the absorption of calcium phosphate, the active form of vitamin D. Option A is calcitriol, option B is erythropoietin, option C is creatinine, and option D is calcium. इसमें से कौन सा हार्मोन किडनीज मेड करती हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट? तो जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कैल्सीट्रियोल। जो कैल्सीट्रियोल होता है वो इंक्रीज कर देता है लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड बाय इंक्रीजिंग द अपटेक ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द gut into the blood, increasing reabsorption of calcium by the kidneys and possibly increasing the release of calcium into the blood from the bone. तो जो कैल्सिट्रियोल है वो कैल्शियम का जो अपटेक होता है उसको इंक्रीज कर देता है। तो जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Moving on to question number 20. The connective tissue that surrounds the kidney is the option A is hilum, option B is calyx, option C is renal capsule, and option D is renal pyramid. तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो रीनल कैप्सूल है। इट इज द कनेक्टिव टिश्यू दैट सराउंड्स द किडनी। क्वेश्चन नंबर 21. What is the term used to describe the production of insufficient volume of urine? अब इस इन चारों में से किसमें इनसफिशिएंट वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस होता है, किस कंडीशन में? ओलिगोयूरिया, पॉलीयूरिया, यूरीमिया एंड एनोयूरिया। तो जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया में लो यूरिन आउटपुट होता है। तो जो ओलिगोयूरिया वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Moving on to question number 22. The majority of material reabsorbed from the filtrate is reabsorbed from the renal tubule. Option A is after the loop of Henle. Option B is in descending limb of the loop of Henle. Option C is before the loop of Henle. And option D is in the ascending limb of the loop of Henle. तो जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी। जो हमारी मेजोरिटी ऑफ रीअब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पे होती है? पीसीटी में। मतलब कि जो 60 to 65% रीअब्जॉर्प्शन है हमें पता है कि वो पीसीटी में हो जाती है। और जो ये पीसीटी है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? बिफोर द लूप ऑफ द हेनले। तो इसमें यही पूछा है कि जो जो पीसीटी है मतलब जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ मटेरियल रीअब्सॉर्ब होता है वो वो होती है पीसीटी, और वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? बिफोर द लूप ऑफ हेनले। तो जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Question number 23. Which of the following is a direct function of hormone relaxing during pregnancy? Hormone relaxin का क्या function होता है? Option A is stimulating uterine contractions. Option B is softening cervix and relaxing pelvic ligaments. Option C is thickening the endometrium. And option D is preventing ovulation. तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। जो रिलैक्सिन होता है वो हेल्प टू रिलैक्स एंड सॉफ्टन द पेल्विक लिगामेंट्स एंड सर्विक्स, allowing for easier passage of baby during labor. तो जो ऑप्शन बी है दैट इज सॉफ्टनिंग सर्विक्स एंड रिलैक्सिंग पेल्विक लिगामेंट्स, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24. Which male reproductive disorder is characterized by the inability to achieve or maintain an erection sufficient for sexual intercourse? Option A is erectile dysfunction. Option B is premature ejaculation. Option C is prostate cancer. And option D is testicular torsion. तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज अ कॉमन कंडीशन अफेक्टिंग मेल सेक्सुअल फंक्शन।
Now moving on to question number 25. In what part of the renal tubule least material is reabsorbed from the filtrate? Option A is distal convoluted tubule. Option B is distal convoluted tubule and collecting duct together. Option C is loop of Henle and option D is proximal convoluted tubule. तो जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। जो लीस्ट मटेरियल होता है वो डीसीटी दैट इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट से रीअब्सॉर्ब होता है, क्योंकि जो हमारी मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन होती है वो पीसीटी में हो चुकी होती है, दैट इज 60 to 65% रीअब्सॉर्प्शन पीसीटी में हो जाती है। तो जो डीसीटी है और कलेक्टिंग डक्ट है इसमें फिर बहुत ही लीस्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल रीअब्सॉर्ब होता है। तो जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। So this is all for today. Thank you.